मार्केट्स अभी भी डिहाई पर ही ट्रेड करे, 8705 के स्तर पर निफ्टी अभी 98 अंकों की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं खास बातचीत की। सीआईआई से ने अपनी सिफारिशों में जीएसटी की जो दरें हैं उसे 18% के आसपास रखने के लिए कहा है। जीएसटी पर आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड पैनल को दी सिफारिशों में सीआईआई ने पूरे देश में एक जैसा फॉर्मेट रखने की मांग भी की है। आज की अहम बैठक में इंडस्ट्री और ट्रेडर संगठन भी जीएसटी दरों पर अपनी सिफारिशें दे रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने इस मुद्दे पर सीआईआई के प्रेसिडेंट नौशाद फोर्ब से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने इस मसले पर, सुन लेते हैं। हमारे साथ सीआईआई प्रेसिडेंट नौशाद फोर्ब हैं। सर, एम्पावर्ड कमेटी के साथ आज बैठक हुई, कौन कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस थे सीआईआई की तरफ से जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने को लेकर चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं अभी और जिसको डील करना ज़रूरी है? सो this is a very it's a landmark legislation for us as a country, and it covers a very wide range of goods and all goods and services. As such, it's a complicated piece of legislation, and we need to get the detail right about how the law actually gets implemented on the ground, how the tax is actually paid and collected on the ground. So, I'll give you one or two examples. One of the things that we've said is that that our position should be to work towards the objective of a single market. How do we ensure a single market? We need one form. So we can't deal with 29 different forms. We're happy with whatever format one has, but it needs to be one format. So it can't be that each state has its own separate form that one needs to follow. Each state has its own assessment mechanism. Each state has its own inspection mechanism. If we do that, we're violating the objectives of GST and we won't get the benefits of GST. So we need to ensure that as a country we get the full benefits of GST. That means one format, one basis of assessment, one basis of you can have one thorough inspection, as thorough as you wish. After that, no further inspections. So, if हम अगर रेट्स की बात करें तो किस तरह का रिकमेंडेशन जीसीआई का रेट्स? We recommended 18%. We recommended 18% because we believe that 18% will be the right rate from a revenue neutrality perspective. Whatever taxes we collect now are the taxes we'll continue to collect at the total level. And second, it will also be a rate where we'll have tax buoyancy. Consumption will not be affected, and that will mean, in fact, consumption should go up in many cases, and that will mean that tax revenues will also stay the same or go up. सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2070 तक लागू करने का टारगेट है। आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी है उसमें इस टाइम पीरियड में हम लागू कर पाएंगे? हो सकता है। We believe we are committed to April 2017. That's the date that the finance minister has suggested. We are committed in CI to working with the government to ensure that deadline of April 2017 can happen. The sooner there is clarity on the detail of how GST will be implemented, the more quickly we can ensure that our own computer systems in our companies are also adapted so that we can meet that deadline. If you ask me, are we ready today? We're not ready today, right? Because many of the details are not clear today on how the GST law will actually be implemented. But we're committed to working with the government as quickly and efficiently as we can to ensure speedy implementation as soon as those details come out. Thank you so much, sir. Thank you. तो सीआईआई प्रेसिडेंट नौशाद फोर्ब्स के साथ ही खास बातचीत आपने सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आइडियल रेट 18% का हो सकता है। अगर 18% से ज़्यादा की दर रखी गई तो जो रिफॉर्म का पर्पस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन पंकज, फाइनली अनुमान तो यही है कि मार्च 2017 से अप्रैल 2017 से जीएसटी एक हकीकत होगी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंचेगा लॉन्ग टर्म में, फिर चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी हो, लॉजिस्टिक्स हो। लेकिन आपके रडार पर कुछ स्टॉक्स रहेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सिर्फ जीएसटी प्ले के लिहाज से? देखो दीपाली, काफ़ी कुछ प्ले आउट हो चुका है। नाउ आई थिंक कब कैसे इम्प्लीमेंट होता है उस पर ये नज़र हैगी। एंड जिस तरह आपने कहा कि जो एक फेवरेट सेक्टर रहे हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक के सेक्टर हों, ऑटोमोबाइल के सेक्टर हो, एफएमसीजी के सेक्टर हों, दीज आर द सेक्टर्स विच हैव बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और इसके अंदर ऑलरेडी एक जीएसटी की थीम ऑलरेडी आ चुकी है। सो मेरे को नहीं लगता कि अब जीएसटी एज अ थीम में इमीडिएट बेसिस पे कुछ प्ले आउट करने को बना है। अब आई थिंक नाउ द थीम इज़ कहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, कहाँ पर मोमेंटम है और कहाँ पर
निवेशकों का पैसा जा रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर थीम टू प्ले देन जीएसटी. मेरे को लगता है जीएसटी एज अ थीम अब प्ले आउट हो चुकी है. नाउ इट वुड डिपेंड कि कब और कैसे रोल आउट होती है, क्या वो टाइमली रोल आउट हो पाती है, नहीं हो पाती है. और उसके अंदर मेरे को लगता है एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल में हम देख ही रहे हैं द काइंड ऑफ स्टॉक, द काइंड ऑफ बिहेवियर स्टॉक्स लाइक मारुति, टाटा मोटर, आइशर मोटर, दे आर डूइंग. आई थिंक दिस ट्रेंड शुड कंटिन्यू. एफएमसीजी एक थोड़ा सा मेरे को लगता है एक स्लो इफेक्ट रहा है, बट मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में उसमें भी कैचिंग अप देखने को मिल सकती है चुनिंदा स्टॉक्स में. श्योर. मारुति, इनफैक्ट ऑटो एंड एफएमसीजी सेक्टर, ये दो है जो आप ध्यान दे सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इज बेटर. ऐसे पंकज की राय. थैंक यू सो मच पंकज फॉर बीइंग ऑन द शो और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए. एडन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एज वेल. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार. नमस्कार.